ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੇਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਫੜਾਪੰਤੀ ਝਗੜੇ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ government.thapar.education ਯਾਨੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਲਰਕ ਯਾਨੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਯਾਨੀ BCom ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ, ਈ-ਸਟੇਟ ਆਫਿਸਰ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ BCA, BCom, BTech, BBA ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BA ਜਾਂ BLLB ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਰੈਂਟ ਕਲੈਕਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ 79 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਲੀਗਲ ਸਪੋਰਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ LLB ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ 17 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਪੀਓਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 34 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਰੇਟਸ ਫਿਕਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਫਿਕਸ ਸੈਲਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 173 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲਕਿ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਉਰਦੂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਸਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ,
इट मीनस है अगर तुसी जांदी गल दिखी तो तुक्का भी मारदे हो तो हो सकता तुहाडा किस्मत दे नाल काम निकल जाए। पर इहदा मैं तुहानूं एक हल दसांगा अंत विच। तीजी कंडीशन है कि तुहाडे कोले 120 घंटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ पीओन की पोस्ट नूं छड्ड के सारियां पोस्टां दे रिगार्डिंग 120 घंटे का कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस तुहाडे कोले होना लाजमी है। या तुहाडे कोले अगर कोई भी डिपार्टमेंट इलैक्ट्रॉनिक संबंधित कंप्यूटर कोर्स है तो तुसीं वो भी फॉर्म दे नाल भर सकते हो, तो तद भी तुसीं एलिजिबिलिटी तुहाडी इत्थे कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी। इस तो बाद चलते हैं, इन्होंने कुछ होर जानकारी दी हैगी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कैंडीडेट मस्ट पजेसिस दा जिन्नी भी सानू जानकारी क्वालिफिकेशन के संबंध च दी गई है, अगर किसी भी कैंडीडेट का ड्यूरिंग वेरीअस स्टेज का सिलेक्शन प्रोसैस होएगा तो वो संबंध च एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। थोड़ा मैं एट ऑफ द एंड सारी चीज़ां समझावांगा, परंतु एक बार जिक्र कर लें मेन चीज़ां ते। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की गल करते हैं तो टोटल इन्होंने गल कही है कि पीओन नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ ਦੇ 400 नंबर का रिटन पेपर का जिक्र किया है, जिहदे च इन्होंने कहा है कि कंसिस्ट ऑफ द 100 क्वेश्चनस ने जिन्हां दे 400 मार्क्स रहणगे। तो सीधी सीधी जी गल आ गई है कि बई ये एक क्वेश्चन के 400 नंबर तुहानूं देण जा रहे हैं। इन्होंने देखा है कि इन एडिशन टू दिस विल बी वन उर्दू लैंग्वेज, उर्दू भाषा के 25 क्वेश्चन होने जिन्हां दा 100 मार्क्स होएगा। याद रखो उर्दू भाषा के 25 क्वेश्चन आउणगे, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और उर्दू लैंग्वेज सैक्शन विल बी क्वालीफाइंग नेचर होएगा। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि मार्क्स ऑबटेन जो उर्दू भाषा के थोड़े आउणगे, चाहे उर्दू भाषा तुसीं 100 ले आओ, वो मैरिट च कंसीडर नहीं होणगे, सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर होएगा। जिवें कि थोड़े क्लैरिकल दे लई लिखती पेपरां च टाइपिंग सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर होंदी है, सिमिलरिटीज़। नैक्सट इन्होंने कहा कि 70 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और याद रखना है कि टोटल 173 असामियां इत्थे कढ़ियां गई ने, जिन्हां चों पीओन दीयां पोस्टां कढ़ण तो बाद या पीओन हाँ मैरिट च इंकलूडिंग पीओन की गल करते हैं तो इन्हां दा 3 गुणा ज़्यादा कैंडीडेट्स नूं कॉल किया जाएगा, पर पीओन का इत्थे कोई भी इंटरव्यू वगैरह इन्होंने नहीं जिक्र किया है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि इंटरव्यू पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये सारी जानकारी इन्होंने छोटिया मोटिया गल्लां जो होंदियां कि सेम नंबर आउंदे आ, इदां उदां दीयां गल्लां सारियां फिट कर रखियां। तीजी गल करते हैं क्लैरिकल के लिए भी। क्लैरिकल के लिए बई इन्होंने सीधे जिहा क्लीयर कहता है कि स्किल टेस्ट थोड़ा होएगा, स्किल टेस्ट क्वालीफाइंग नेचर होएगा। और स्किल टेस्ट के इन्होंने जानकारी सानू इत्थे दित्ती है, स्किल टेस्ट का कोई भी मैरिट नाल लेना देना नहीं है। टाइपिंग टेस्ट है पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में कंसीडर होएगा, जो कि गौरमेंट ऑफ पंजाब के वेरीअस पोस्टां जो क्लर्क दियां फिल कीतियां जांदियां सिमिलरिटीज़ इन्हां ने रखा गया, क्लीयर होएगा। ठीक है, एक इन्होंने जानकारी दी, अहम पॉइंट दिता है कि कैंडीडेट हु फेल टू क्वालीफाई द स्किल टेस्ट, अगर स्किल टेस्ट के फेल हो जाते हो तो तुहाडा एलिजिबिलिटी सिलैक्शन दे विच तुहाडी बिल्कुल मन्नी जाएगी। इन्होंने यह गल कही है, लेकिन यह गल रखना है कि अगले 2 सालों के तुहानूं ये टेस्ट क्वालीफाई करना मस्ट है। किसी इस पेपर दे विच किसी भी प्रकार का नैगेटिव मार्किंग नहीं होएगा। इन्होंने एक चीज़ कही है कि बई 40% घट्टो घट्ट यानी पास होना जरूरी है। तो उर्दू भाषा दे विच इन्होंने कहा कि लिमिट कैन बी रिड्यूस 35% इन द केस ऑफ नंबर ऑफ क्वालीफाइंग कैंडीडेट लैस दैन द 3 टाइम्स नंबर ऑफ द पोस्ट। ठीक है, ये थोड़ा जानकारी अगे मिल जाएगी। हुण गल करते हैं आप अगली उर्दू लैंग्वेज की गल करते हैं तो रिटन मैरिट दे विच यह बिल्कुल कंसीडर नहीं हो, इन्होंने ये चीज़ बार बार जिक्र किया इत्थे। हुण गल करते हैं कि फाइनली इन्होंने कहा कि किसी कोई भी अगर ऐसा केस आता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अगर बराबर होंदी है तो थोड़ा पता ही उस केस से की होंदा है। ठीक है, नैक्सट चलते हैं फॉर द पीओन पोस्ट के लिए। पीओन पोस्ट के लिए इन्होंने डायरैक्ट किया है कि थोड़ी मैरिट बनेगी, यानी इन्होंने कहा कि पीओन के लिए 12th क्लास के बिहाफ से डायरैक्ट मार्क्स से मैरिट बनेगी और 10 गुणा ज़्यादा कैंडीडेट्स नूं इत्थे इन्होंने कहा है असीं करांगे। और उस तो बाद यानी याद रखना है पीओन के वास्ते की कंडीशन लाई है, पीओन के वास्ते कंडीशन लाई कि क्वालीफाइंग एग्जाम होएगा उर्दू का। ठीक है, 50 क्वेश्चनों का इन्होंने कहा है, 4 नंबर हर क्वेश्चन का होएगा तो 1 घंटे का पेपर होएगा। ये चो पास होंगे तो तदा ही तुसीं अगे वध सकते हो। ठीक है, ये चीज़ थोड़े लिए कंडीशन रखी है, कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं होएगा। ये चीज़ों सारे पॉइंट्स तुसीं रीड आउट कर सकते हो। क्लीयर है ना। हुण नैक्सट आ जाता है कि फिर अगर उर्दू नूं क्वालीफाइंग नेचर रखा तो पेपर किहड़ी भाषा च होएगा, ये भी जानकारी इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ रिटन एग्जाम क्लीयर किया है। पेपर तुहाडा ऑफलाइन होएगा, इन्होंने कहा कि OMR सीट ते पेपर हो सकता है। फिर इन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड इन इंग्लिश एक्सैप्ट उर्दू भाषा जी उर्दू दे विच होएगा। हुण आपां चलते हैं प्रोपर तरीके का सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर की होएगा। पहली पोस्ट इन्होंने दे रखी है सैक्शन ऑफिसर, ई स्टेट ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के संबंध च होएगा। रेंट कलैक्टर, असिस्टेंट क्लैरिकल, सीनियर असिस्टेंट दे विच टोटल 3 घंटे इन्होंने ड्यूरेशन 3 घंटे का पेपर होएगा तुहाडा।
जो कि रीजनिंग, ध्यान रखो रीजनिंग, मैंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 40 क्वेश्चन, 160 नंबर, 64 नंबर क्वालीफाइंग नेचर है, याद रखना है किन्ने 64 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। करंट अफेयर, ठीक है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग हिस्ट्री और जनरल साइंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 50 क्वेश्चन 200 नंबरों के 80 नंबर थोड़े क्वालीफाइंग नेचर रखे गए हैं। मिनीमम क्वालीफाइंग जो मार्क्स होंगे इन्ने होने लाजमी है। थर्ड है वक्फ बोर्ड के संबंध च 19 एक्ट बनया हुआ 1995 जो कि अमेंडमेंट बिल होया सी, इहदे संबंध च तुहानूं 10 क्वेश्चन पूछे जाने, 40 नंबरों के विच 16 लैके घट्टो घट्ट पास होना जरूरी है। तीजे इन्होंने दिता कि टोटल ए, मतलब ऊपर तुहानूं टोटल कितना हो गया वा 100 नंबर हो गया, 400 माफ करना 100 क्वेश्चन हो गया, 400 नंबर हो गए। नैक्सट गल करते हैं उर्दू लैंग्वेज टेस्ट होएगा, सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर होएगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड फॉर मैरिट डिटरमीनेशन, मैरिट लिए नहीं है। 25 क्वेश्चन आउणगे, टोटल 100 नंबर का काम होएगा, 40 लैके आने लाजमी है। ये तुहानूं दस दिंदे हैं कि गिल्ज मेंटोर तुहानूं हैल्प कर देगा जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे कोले उर्दू भाषा नूं ट्रांसलेटर यानी उर्दू भाषा के ग्रैमर नूं ट्रांसलेट करके पंजाबी भाषा च मिल जाएगा, थोड़ी हैल्प कर देगा, ठीक है। और बहुत सिंपल है, अगर तुसी अंदाज़ा भी करके आओगे ना, मैक्सीमम तुसी मान लो कि समथिंग तुसी लगभग 10 क्वेश्चन तुसी करैक्ट करने हैं, 25 चों 10 कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके नाल कर लोगे, ये मैं तुहानूं कहना चाह रहा सीगा, असीं तुहाडी इस तरीके नाल मदद करांगे। टोटल गल करते हैं 125 क्वेश्चन हो जाएंगे, 500 नंबर हो जाएंगे, 70 नंबर का इंटरव्यू होएगा, टोटल मार्क्स 570 होएगा, लेकिन मैरिट थोड़ी सिर्फ 470 चो कंसीडर की जाएगी, बिकॉज 400 लिखती पेपर तो 70 इंटरव्यू इत्थों ही बनेगा। हुण नंबर 2 अकाउंटेंट क्लरिकल दे विच की होएगा, क्योंकि इत्थे BCom मंगी गई है, तो सब तो पहली गल तो है कि रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश तो बिल्कुल सेम होएगी। इन्होंने क्या है कि डोमेन रिलेटेड यानी थोड़े इस रिलेटेड थोड़े डोमेन रिलेटेड मतलब है कि थोड़े अकाउंट्स रिलेटेड थोनों 50 क्वेश्चन ने सिमिलरली इत्थे कंडीशन रखी गई है। और इस तो इलावा वक्फ बोर्ड का सेम सिलेबस होएगा, बाकी सब कुछ सेम है एज यूजुअल, यू कैन सी इट, ठीक है। डोमेन रिलेटेड ये सिमिलरली इस पेपर के भी थोनों करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ते इंक्लूडिंग हिस्ट्री, जनरल साइंस भी थोनों पूछी जाएगी, ठीक है। 50 क्वेश्चनों के भी याद रखना है। इन्होंने कहा कि फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट के लिए थोड़ी जी इन्होंने फाइनैशियल अकाउंटिंग जानकारी दी है, फाइनैशियल अकाउंटिंग प्रिंसीपल, इकोनॉमिक, बिजनेस लॉ, टैक्स जो कि सिस्टम है, प्रैक्टिस एंड इंडियन टैक्स सिस्टम की है, स्पैशल फोकस ऑन द इनकम टैक्स लॉ हो गया, इनडायरैक्ट टैक्स हो गया। गिल्ज मेंटोर दे इस प्लेटफॉर्म ते लगभग 65 क्लासां अकाउंटिंग दियां सब तो बेस्ट साडे टीचर ने करवा रखियां हैं, विदाउट एनी किसी बुक तो कंप्लीट स्टडी कर सकते हो, जिदे कंप्लीट स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे। और जिन्ने भी स्टूडेंट्स खास तौर पर पटवारी प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़े लिए बहुत ही सोने ते सुहागे वाली गल है कि तुसीं अच्छे तरीके की तैयारी कर रहे हो। कंपनी लॉ हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लगभग सब कुछ एवरीथिंग पॉसीबल है, ठीक है। बाकी लीगल वाले ने संबंधित है तो थोड़े इन्हों एज यूजुअल थोड़ी लिए पेपर के जानकारी होएगी, तुसीं इसनूं रीड आउट कर सकते हो। पीओन के लिए उर्दू भाषा के 50 क्वेश्चन आउणगे, 4 नंबरों का क्वेश्चन होएगा, 200 नंबर 80 लैके आने लाजमी है, ठीक है। इस तो इलावा है कि फॉर द अदर इन्होंने कहा कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड ऑन द अनसीन पैसेज है। फिर इन्होंने कहा कि चेंज ऑफ नंबर, ठीक है, यह जो कि फॉर ऑल द पोस्ट दे विच जिहड़ा कि उर्दू के संबंध जो होएगा उसकी जानकारी इन्होंने दे रखी है, ठीक है। वाहिद फिर आई थिंक मैनू मैं शब्द माफ़ करना कोई गलत शब्द ना यूज़ करना उर्दू का, तो इस करके मैनू रीड नहीं कराँगा, किसी को मैं गलत फील होंदा फिर, ठीक है। चेंज ऑफ जेंडर है, ग्रामर दे विच होएगा, सिनोनिम्स होएगा, एंटोनिम्स होएगा, ईडियम्स फ्रेजेज होएगा, कुछ नहीं है। थोनों सिंपल जा क्लीयर कहता भी असी थोनों प्रॉपर प्रोवाइड करवा देंगे, इस तो वड्डा कुछ नहीं कर सकते असीं, इस तो वध के कुछ नहीं कर सकते रहा, ठीक है। समझ गए हो ना। तो प्लीज़ हुण जिन्ने भी शुभचिंतक फॉर्म भरना चाहते, थोड़ी टेंशन असी दूर करती है यार, फॉर्म भरना थोड़ी जिम्मेदारी है। हाँ 10 बारी सोचो फॉर्म भरन तो पहला, ये भी नहीं भी असी कहता तो ठीक है सब कुछ ठीक है, जे थोड़ा मन करता है इच्छा करती है तो जरूर यू कैन फिल द फॉर्म। ये लिए वधेरी जानकारी के लिए तुसी हैल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो, इन्हों की मेल ID पर मेल भी कर सकते हो, ठीक है। थोनों इत्थे पूरी हैल्प की जाएगी और तुसी फॉर्म तुहाडे ऑनलाइन ही भरने ने। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये डिटेल थोनों दे दी गई है। मिलते हैं फिर आप नैक्सट अपडेट, तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय।